चैप्टर 8 वर्स 41। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशम् इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। O Lord of the universe, soul of the universe, O personality of the form of universe, please, therefore, sever my tie of affection for my kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? बताइए। ओके। मतलब जी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। इट्स ऑल राइट, आप पढ़ो, कोई बात नहीं। A pure devotee of the Lord is ashamed to ask anything in self-interest from the Lord, but the householders are sometimes obligated to ask favors from the Lord, being bound by the tie of family affection. Srimati Kunti Devi was conscious of this fact, and therefore she prayed to the Lord to cut off the affectionate tie from her own kinsmen, the Pandavas and the Vishnus. The Pandavas are her own sons, and the Vishnus are the members of her paternal family. Krishna was equally related to both the families. Both the families required the Lord's help because both were dependent devotees of the Lord. Srimati Kunti Devi wished Sri Krishna to remain with her son the Pandavas, but by his doing so, her paternal house would be bereft of the benefit. All these partialities troubled the mind of Kunti, and therefore she desired to cut off the affectionate tie. A pure devotee cut off the limited ties of the affection for his family and widen his activity of devotional service for all forgotten souls. The typical example is the band of six Goswamis who follow the path of Lord Chaitanya. All of them belongs to the most enlightened and cultured rich families of the higher caste, but for the benefit of the mass of population, they left their comfortable home and become mendicants. To cut off all family affection means to broaden the fields of activity. Without doing this, no one can be qualified as a Brahmana, a king, a public leader, or a devotee of the Lord. The personality of Godhead as an ideal king showed his example this by example. Sri Ramcharan cut off the tie of the affection for his beloved wife to manifest the qualities of an ideal king. Such personality as a brahmana, a devotee, a king, or a public leader must be very broad-minded in discharging their respective duties. Srimati Kunti Devi was conscious of this fact, and being weak, she prayed to be free from such bondage of family affection. The Lord is addressed as the Lord of the universe or the Lord of the universal mind, indicating his all powerful ability to cut the hard knot of family affection. Therefore, it is sometimes experienced that the Lord, out of his special affinity towards a weak devotee, break the family affection by force of circumstances arranged by his all powerful energy. By doing so, he causes the devotee to become completely dependent on him and thus clear the path for his going back to Godhead. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ऑलराइट। तो इसमें अब कुंती महारानी क्या बोल रही हैं? अब कुंती महारानी बोल रही हैं कृष्णा को कि कृष्णा आप रुक जाओ। यही बोल रही है ना, पिछले 2-3 वर्सेस से वो यही प्रे कर रही हैं उनको, कृष्णा आप ना जाओ। और कृष्णा क्योंकि अब महाभारत खत्म हो गया तो वो जा रहे हैं वापस द्वारका में। तो अब कुंती को लग रहा है कि यार मैं इनको रोक के गलत कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको रोक लूंगी तो इनके वहां पे पेरेंट्स हैं वसुदेव देवकी और इनके यदुज हैं वृष्णिज जो हैं, तो उनकी एसोसिएशन, वो ऑलरेडी काफी देर से यहाँ पर हैं, तो वो लोग उनकी मिस करेंगे एसोसिएशन, और वो डिपेंडेंट हैं भगवान पे, वो भी हमारे जैसी डिवोटीज है यादव यदुवंशी भी। तो इसलिए वो उधर से भी प्रॉब्लम है। फिर अगर वो कहती है कि यहाँ से छोड़ जाओ तो तब भी प्रॉब्लम है, राइट? कि पांडवास उनके उसके खुद के बेटे और वो खुद वो उनकी एसोसिएशन मिस करेंगी।
तो इन सब उधेड़ बुन में उसे लग रहा है यार कि, और वृष्णीज कौन है, वृष्णीज भी उनके पैटर्नल हैं, उनके फादर की साइड से हैं, राइट। तो दोनों ही उनके रिलेटिव्स हैं। कैसे, वो कैसे कृष्णा को डिवाइड करें, इधर रहें वहां रहें, वो उनको, कुंती महारानी को समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो क्या बोल रही है, बंदा वो जैसे फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गई है एक तरह से। और वो फ्रस्ट्रेट होके बोल रही हैं कि मैं ऐसा करती हूँ कि आप मेरे, जो मेरा अफेक्शन है ना पांडवों के साथ, और जो अफेक्शन है मेरा मेरे मायके के साथ, वो दोनों हटा दो आप। सेवर माई टाई ऑफ अफेक्शन। कैन एनीवन प्रे लाइक दिस, कि मेरे मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, मेरे फादर से, मेरे मदर से ये चीजें हटा दो। अगेन हमने पहले भी एक ऐसी प्रेयर देखी थी ना कुंती महारानी की, जिसमें वो बोल रही थी कि मुझे दुख दो, हाँ, अकिंचन, मुझे अकिंचन बना दो, मटेरियली एग्जॉस्टेड बना दो मुझे, अकिंचन गोचरा, राइट। तो वो भी हमने देखा था कि वो भी बहुत हाई लेवल की प्रेयर है। कौन बोलता है कि यार मेरे सारे मटेरियल पोजेशंस ले लो? कोई कोई ऐसे प्रे कर सकता है कृष्णा को? कृष्णा ने या गलती से भी हाँ हाँ बोल दी तो बस हम तो गए। जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज और ये सब सब कुछ गया, राइट। सेम वे दिस इज अगेन मोर, इवन मोर एडवांस्ड। वो तो चलो फिर भी प्रॉपर्टी और मटेरियल पोजेशंस है ना, वो फिर भी बंदा वन आफ्टर अ पॉइंट बंदा कहता है यार ठीक है, आई विल, आई कैन स्टे, मंदिर में खिचड़ी खा लूंगा मैं, मंदिर में खिचड़ी मिलती है, मैं वहां जाके रह लूंगा, वहां खिचड़ी खा लूंगा। बट यहाँ पर वो बोल रही है कि मेरे बच्चों से, मेरे फादर मदर, उन सब रिलेटिव से भी मेरी अफेक्शन हटा दो, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज हम एज अ फैमिली, सबसे सबसे पास वही होता है ना। अब बाकी रिलेटिव्स फ्रेंड्स तो बाद में ऐड होते हैं। सबसे सबसे ज्यादा क्लोजनेट कौन होता है, जिसके साथ आपने सारी जिंदगी बितानी है? आपका स्पाउस। तो इवन बच्चों से भी ज्यादा हमारी अफेक्शन किससे होती है? हमारे हस्बैंड से, हमारी वाइफ से। बिकॉज वो ही एक है, बच्चे आपके पेरेंट्स ने आपको छोड़ दिया या आपने उनको छोड़ दिया आफ्टर अ पॉइंट, राइट, शादी के बाद। देन थोड़ी देर बच्चे आपके साथ कितनी देर रहेंगे? 15 साल, 20 साल मैक्सिमम, उसके बाद बच्चे भी छोड़ जाएंगे। सिर्फ जो आपका स्पाउस है वो एंड तक आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो उससे जो अफेक्शन हटाना बहुत बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा ये साक्षी के ऑफिस में एक काम करता था बंदा, करता, अब एनर्जी एनर्जी ऑस्ट्रेलिया में। तो वो, उसकी फैमिली पंजाब में थी, उसके 4 बच्चे थे, 4 बच्चे उसके पंजाब में, और वो खुद यहाँ पर। तो वो एक बार तो वो छोड़ के चला गया यहाँ से सब कुछ पैकअप करके, क्यों? क्योंकि अफेक्शन थी फैमिली के साथ। तो वहां चला गया, वहां पर भी उसका काम नहीं बना, फिर वो वापस आया अकेला यहाँ पर। 1 महीना जाता था, फिर मिल के आता था, कभी बच्चों को बुला लेता था छुट्टियों में। But so he was torn apart. Same way, Kunti Maharani was torn apart between the two families. Which two families? Pandavas and Vrishnis. So finally, she is giving up. She said, "Yaar, enough is enough. I want to cut all the attachments which I have with this material world, even with my kinsmen. And what do you want to do? I want only your, the shelter of only your lotus feet, right?" सो प्रभुपाद इसमें और भी एक भागवतम में मेंशन्ड है, इसमें वर्स में वो मेंशन करते हैं कि लिविंग बीइंग्स, जितनी भी हम लिविंग बीइंग्स हैं ना, वी आर ब्रॉट टुगेदर, वी स्टे टुगेदर फॉर सम टाइम, एंड देन वी आर सेपरेटेड। और ये हमने अपनी लाइफ में, अपनी अपनी लाइफ में वी कैन लुक बैक एंड सी कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे कितने कितने लोगों के साथ हम मिले, थोड़ी देर के लिए मिले, अफेक्शन हुई, और देन वी गॉट सेपरेटेड ड्यू टू circumstances और वट एवर द रीजन में बी, राइट। तो स्पेशली हम जैसे आईटी में हैं, तो मेरी पहले नोएडा जॉब लगी, बॉम्बे, फिर बेंगलोर। तो हर एक कंपनी में जा जाके वहाँ पे फ्रेंड्स बनते थे। फिर हम, फेयरवेल पार्टी होती है, जर्मनी था मैं, वहाँ पर फेयरवेल पार्टी हुई, गिफ्ट्स देते हैं, और कई लोग इमोशनल भी हो जाते हैं उस टाइम पे, राइट। सो बट वी आर, दिस इज बाउंड टू हैपन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। तो इसमें संस्कृत में जो आगे भागवतम में एक श्लोक आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि वी आर लाइक लीव्स, फॉलन लीव्स, जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं पतझड़ में। तो वो क्या होता है, जब हवा चलती है वो कुछ देर तक साथ चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो इधर उधर हो जाते हैं।
वो हमेशा साथ नहीं चल चल सकते, राइट। फिर इधर उधर हो जाते हैं। फिर कोई पत्ता किसी उसमें मिल जाता है, किसी पत्तों में कोई कहीं मिल जाता है, वो फिर किसी और सेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ लीव्स के साथ वो मिल जाते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद अस एज वेल, राइट। कभी हम मिलते हैं, फिर हम किसी और से मिलते हैं, फिर और से मिलते हैं। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग। और ये जो मटेरियल अफेक्शन है, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द मोर वी इंटरेक्ट, राइट। तभी कुंती महारानी बोल रही है कि ये जो मेरी मटेरियल अफेक्शन है इसको काट दो। बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर बाइंडिंग मी, दे आर बाइंडिंग मी। और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है ना, troubled, all these partialities are troubling the mind of कुंती। कुंती महारानी का माइंड विचलित हो रहा है कि एक तरफ तो मेरी कृष्णा से इतनी अटैचमेंट है, और दूसरी तरफ मैं पांडवों के साथ वो सब चीजें आ रही हैं। और ये चीज, ये इमोशंस तब आते हैं जब एक्चुअली यू फील के यार हाँ सब मैं कृष्णा के पास जाने वाला हूँ। इफ यू एक्चुअली फील फॉर अ मोमेंट कि यू आर गोइंग टू कृष्णा, देन यू विल सी नो 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 आई डोंट वांट। हाँ। तो हम कई बार प्रे करते हैं ना, कृष्णा अपने पास बुला ले। फिर मैं सोचता हूँ अरे यार ये मैं क्या प्रे कर रहा हूँ, कृष्णा अपने पास बुला ले। यहाँ मेरे बच्चे बीवी ये कौन देखेगा। राइट। सो दिस दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट। सो हम हमारा माइंड जो है वो ट्रबल्ड ही रहता है। राइट। कभी खुशी कभी गम। वो चित्रकेतु महाराज की वो थी ना, उनका पुत्र था हर्ष शोक। उसके पुत्र, उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, हर्ष शोक। हर्ष मीन्स हैप्पीनेस, शोक मीन्स उदासी, हाँ सैडनेस। तो क्यों रखा था, उनका पुत्र नहीं हो रहा था, उन्होंने बड़ी तपस्या करी, उनको फिर मिला, तो मिलने के बाद उनको ये सबको पता है ये स्टोरी, राइट। तो उनको वरदान मिला कि वो उनको हर्ष देगा, बट वो शोक भी देगा। वो कहते कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मुझे चाहिए। तो वो हर्ष मिला, और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो मर गया, तो बहुत शोक हुआ उनको, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपन्स। तो और स्पेशली मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, सुख की डेफिनेशन क्या है मटेरियल वर्ल्ड में, हमने कई कई बार डिस्कस किया है। कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज हैप्पीनेस। मटेरियल वर्ल्ड की प्रभु जी। हाँ, यहाँ पे हमारे लिए क्या हैप्पीनेस है हमारे लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। लॉटरी लग गई। ये लॉटरी। अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छी सी बीवी। वो मटेरियल वर्ल्ड में ट्रू हैप्पीनेस एक्चुअली है ही नहीं। है ही मुझे नहीं। तो ऐसा लगता है। करेक्ट नहीं है, एग्जैक्टली मटेरियल हम्म। वर्ल्ड में हैप्पीनेस क्या है, कि मेरे को दुख नहीं आ रहा। तभी ऑफिस में पूछ लो हम्म। ना जाके, हाउ आर यू, आर नॉट बैड मेट, विच मीन्स कि मैंने दुख को दूर रखा है, वही मेरे लिए हैप्पीनेस है। जैसे बॉक्सिंग मैच में क्या होता है कि एक बंदे को पड़ रहे होते हैं यहाँ पे पंचेस, तो वो 3 मिनट का टाइमर होता है, 3 मिनट तक पंचेस खाता है, उसके बाद ब्रेक होती है, एक राउंड खत्म होता है। तो उसे सांस आती है, हाँ यार अब ठीक है। तो वो जो 1 मिनट की जो ब्रेक है, वो सुख है। तो यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में ये सुख है कि मैंने, और ये एक्चुअली श्लोक है भागवतम में, मुझे याद नहीं है श्लोक का, बट मैंने पढ़ा हुआ है कि दुख को दूर रखना इज हैप्पीनेस इन मटेरियल वर्ल्ड। सो अब हम बात कर रहे थे अगेन वही फैमिली की। तो सबसे ज्यादा जो टाई क्लोज नेट जो यूनिट होता है वो एक फैमिली होता है, राइट। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सारे उसके बाहर आते हैं, बाहर आउटर सर्कल्स में आते हैं। सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमें अपने हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन इन सबसे होती है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, इसमें क्या गलत है अगर मेरे को है तो, ये गलत बात है क्या। एक अच्छी जॉब होना, अच्छी कार होना, एक घर होना, और एक खुशहाल छोटी फैमिली, एक यूनिट होना, ये गलत है क्या ये बात। होना गलत नहीं है, बट उसके साथ डीप अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट लेट अस ग्रो इन आवर भक्ति। हाँ एग्जैक्टली। सो वही अब कुंती महारानी वही कह रही है कि उनके साथ है। बट होता क्या है, प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, भागवतम में उन्होंने बोला कि एक सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने वो मुंह से एक वो सलाइवा टाइप्स निकालता है, राइट। एक विशेष सी चीज निकालता है, जिससे वो एक थ्रेड सा बनता रहता है। तो वो उससे क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है वो, तो उससे इवेंचुअली क्या होता है, वो उसके उसके आसपास लिपटने लग जाता है, और वो कोकून बन जाता है। और ओवर द टाइम
इट बिकम्स वेरी हार्ड। वो जब ड्राई हो जाता है तो बहुत हार्ड हो जाता है, और तब उससे, उस कोकून में से निकला ही नहीं जाता। सो दैट इज व्हाट दिस अटैचमेंट डज टू अस। सो ये जो हमारे वाइफ, बच्चे और इन सब के साथ जो हमारी अटैचमेंट है ना, इट्स लाइक दैट। तो वो शुरू शुरू में तो अच्छी लगती है, बट वो इतनी हार्ड हो जाती है कि यू कांट गेट आउट ऑफ इट, और तुम उसी में घुट के मर जाते हो। और पश्यन् अपि न पश्यति देह अपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। देह, अपत्य तुम्हारी वाइफ, कलत्रा तुम्हारे बच्चे, दीज आर ऑल इनफॉलिबल सोल, ऑल फॉलिबल सोल्जर्स। बट हमें क्या लगता है कि, और पश्यन् अपि न पश्यति, हम उनके चक्कर में बार बार, हमें डे इन डे आउट, वन आफ्टर अनदर बर्थ, हम उसी के चक्कर में फंसे रहते हैं, फंसे रहते हैं, राइट। और ये अटैचमेंट हमें लगता है कि खत्म हो जाएगी, चलो जब हम खत्म होंगे तब भी खत्म हो जाएगी। नो, इवन मरने के बाद भी अटैचमेंट नहीं खत्म होती। अभी मेरी मम्मी की डेथ हुई है, तो क्या मेरी अटैचमेंट मम्मी से खत्म हो गई? नहीं, इवन आप, बल्कि ज्यादा हो गई। अब तो ज्यादा सोचते हैं, फिर जब जब होते हैं तब तो फिर भी इतना नहीं सोचते थे, अब ज्यादा सोचते हैं मम्मी के बारे में, राइट, डेली। तो वो व्हाई? बिकॉज दिस अटैचमेंट डजंट गो। और ये आज की नहीं है, ये जन्मों जन्मांतरों की बनी हुई है। तो ये जो मोह है, ये इसको मोह बोलते हैं। तो ये जो डेवलप अटैचमेंट है, ये दो तरह से फैलती है। हाँ जी माता जी, कुछ कहना चाहते हैं? तो प्रभु, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस अटैचमेंट? हाँ मतलब करेक्ट, आएंगे आएंगे, इसी में हम कवर करेंगे, इसमें डेफिनेटली विल कवर कि इसमें से हम कैसे निकलेंगे। इजंट इट? वेरी नाइस क्वेश्चन, विल विल कवर इट माता जी। सो अभी पहले देखते हैं कि ये डेवलप किन स्टेजेस बोल लो, या किन स्टेप्स में बोल लो, या किस डायरेक्शन में ये डेवलप होती है। तो इसमें भागवतम में आगे जाके आएगा प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड अहम मामेति। फर्स्ट इज मी एंड माइन। सो आई एम थिंकिंग दैट आई एम द बॉडी, नॉट द सोल। So this is an illusion. So this is the first mistake. This is the first direction in which we think I am the body, right? So this is called moha. Then comes the mahamoh. Mahamoh is thinking that this is mine, this is my house, this is my car, this is my bangla, this is my relative, this is my friend, this is my enemy. So me and mine, right? तो जैसे, और फिर उनके साथ अटैचमेंट, और या उनके साथ हेट्रेड, जो मेरे नहीं है उनके साथ हेट्रेड, जो मेरे हैं उनके साथ प्यार। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मॉल में गया हूँ, तो मॉल में बाहर मैंने कार खड़ी करी है, तो कार जब मैं आया हूँ वापस आके मैंने देखा, अभी मैं मॉल से निकला हूँ और मैंने देखा, अरे यार मेरी नई कार, और उस पे किसी ने ठोक के चला गया कोई। ओह, दिल को इतना दर्द हुआ कि हो मेरी कार के साथ क्या हो गया। जब मैं पास पहुंचा तो देखा कि अरे नहीं, ये मेरे जैसी लगने वाली कार थी, ये मेरी नहीं थी। मेरी कार साइड में खड़ी है, वो अच्छी है, ठीक है। हाँ, दिल को सुकून, राइट। तो अगर किसी और का नुकसान हो रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी और का घर टूट रहा है, किसी और का गाड़ी टूट रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मेरे पे आती है, तब मुझे लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, इजंट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई फादर, माई मदर। और ये अटैचमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है हमारी? हमारी मदर से। सबसे पहले बच्चा किसको देखता है? अपनी माँ को। अपनी माँ को देखता है ना। तो माँ से बहुत अटैचमेंट, हमेशा माँ के साथ लगा रहता है बच्चा। बोलता है ना बच्चा, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। इवन काफी देर तक, बड़े होने के बाद तक वो माँ के साथ काफी देर तक रहता है। मुझे याद है, साक्षी इंडिया गई थी, तो कोविड में माँ फंस गई थी, तो आरिफ भी उसी के साथ था। तो 6-8, आई थिंक 6-8 महीने वहीं रही थी वो। तो 6 महीने तो रही थी। तो उसके बाद मैं, आरिफ उसके साथ ही था, तो बहुत छोटा था आरिफ उस टाइम। तो मैं एयरपोर्ट पे लेने गया उसको, वो लगेज वगैरह मतलब वो लेके आ रही थी अपना बैग। तो मैंने कहा मेरे को आरिफ दे दे, तो मैंने आरिफ को गोद में उठाया, और क्योंकि मेरी 1 मिनट की पार्किंग थी, तो मैं फटाफट से उसको गोद में उठा के लेके आ रहा हूँ, और आरिफ रोने लग गया। वो मुझे भी नहीं पहचान रहा हो कि मैं उसका फादर हूँ, राइट। सो फिर धीरे धीरे मतलब उसको फादर, मदर इंट्रोड्यूस करती है अपने फादर के साथ, तो फिर फादर आता है। फिर धीरे धीरे ब्रदर, सिस्टर, फिर रिलेटिव्स, फिर अंकल आंटीज, ठीक है। फिर अपने कंट्री मैन, फिर अपने स्टेट मैन, ये सब ये एक्सपैंड होता जाता है सर्कल, राइट।
सो ये जो मटेरियल अफेक्शन का जो सर्कल है, अगर हम अपने आप को अहम मामेति प्रिंसिपल के साथ अटैच करते हैं, मोह और महामोह के साथ रहते हैं, ये मेरा और बॉडीली कंसेप्शन में रहते हैं, तो क्या होगा? ये एक्सपैंड होता जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे है ना, रिलेटिव्स, ये सब चलता जाएगा। तो इसमें क्या क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण भगवत गीता 2.44 में बोलते हैं, इससे होगा क्या? जब हम बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे अपने मटेरियलिज्म्स के साथ, तो क्या होगा? भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया तया अपहर्ता चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि ही समधो न विद्यते। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, right? What happens? And who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to Supreme Lord does not take place. अगर हम बहुत ज्यादा इन सब चीजों में होंगे ना, मटेरियली इकट्ठे करना चीजों को, ठीक है, सेंस एंजॉयमेंट करना, तो होगा क्या? भक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे रुचिता माता जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने सेम वही चीज कही कि अगर हम, इफ वी आर टू मच अटैच्ड, देन दैट रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, राइट, व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं आएगी हमें, फिक्स नहीं होंगे हम उसमें डिवोशनल सर्विस करने में, राइट। तो हम जैसे ही हम बीट बैग लेके बैठेंगे, कोई और बंदा हमारे नजर उसमें दिमाग में आ रहा होगा, फिर एक आगे जाएगा, फिर दूसरा दिमाग में आएगा, फिर तीसरा आएगा, ये सब चलता जाएगा। इतने में हाँ 16 राउंड हो गए, पता ही नहीं चला हमें, तो 16 राउंड कर लिए प्रभु प्रभु हमने, इजंट इट? तो ऐसे निकल जाते हैं 16 राउंड। आजकल तो बहुत जल्दी हो रहे हैं प्रभु, बहुत अच्छी चल रही है चैंटिंग, पता ही नहीं चलता कब हो जाते हैं। उसमें सुनाई कृष्णा तो सुनाई नहीं देता उसमें, लोग लोग घूम रहे होते हैं दिमाग में, राइट। तो कृष्णा वही बोल रहे हैं कि अगर पीसफुली चैंट करना है तो मटेरियल अटैचमेंट से टोटली कट ऑफ हो जाओ। अगर नहीं, टोटली नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट टू स्टार्ट विद रिड्यूस द मटेरियल अटैचमेंट्स। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विच रुचिता महाराज जी हैज आस्क्ड कि इसको करें कैसे, राइट। इसको ध्रुव महाराज की बहुत अच्छी एग्जांपल आती है इसमें भागवतम में। ध्रुव महाराज ने क्या किया था? ध्रुव महाराज जंगल में गए थे भक्ति करने, पर उसके पीछे रीजन क्या था उनका? उनका ऑनर, उनकी रिस्पेक्ट, क्योंकि ही वॉज नॉट ऑनर्ड। उनको बोल दिया गया था कि जाओ अपना बाप ढूंढ के लाओ खुद से, विष्णु, विष्णु को बोलो उसकी गोद में जाके बैठो, राइट। तो और फिर हुआ क्या? देन ही वेंट टू फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में उनको कौन मिला? नारद मुनि मिले। सो जो मटेरियल फैसिनेशन थी उनको अपनी मटेरियल लाइफ एक्सपैंड करने की, दैट कन्वर्टेड इनटू द स्पिरिचुअल फैसिनेशन। देन ही मेट अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड लाइक नारद मुनि। सो व्हाट वी शुड डू? अब हम तो जंगल में जाके हमें तो नारद मुनि नहीं मिलेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने घर पे उनको इनवाइट करना चाहिए। जिनको, जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, राइट, जो सीनियर डिवोटीज हैं, जिन्होंने 20 20 30 30 साल लगा दिए हैं अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ये एक भागवत में भी श्लोक है जिसमें बोला है कि ऐसा घर, विशालय, आलय, आलय होता है ना जैसे विद्यालय और दुखालय, ऐसे विशालय नाम उसमें दिया गया है। ऐसा घर क्या है? विष का आलय है, जहां पर डिवोटीज नहीं आते, राइट। सो अपने घर पे डिवोटीज को बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। हम तो ठीक है, हमारा तो बढ़िया कि हम भक्ति वृक्षा करते हैं, तो एवरी फ्राइडे, किसी ना किसी फ्राइडे हम भक्ति वृक्षा के होस्टिंग के चक्कर में डिवोटीज आ जाते हैं घर पे। बट सोचो जो भक्ति वृक्षा का पार्ट नहीं है, जो नहीं होते, उनके लिए इट बिकम्स अ चैलेंज। एंड स्टिल देर इज नो प्रॉब्लम, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भक्ति वृक्षा कर रहा है वही भक्ति कर रहा है। दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए कि दे शुड इनवाइट। ओजस्वी प्रभु कहते थे, कहते मेरे कोई ऐसे हफ्ता, कहते अदरवाइज हफ्ता हफ्ता अगर कई बार मिस हो जाए, कुछ काम आ जाए, तो एवरी फोर्टनाइट तो कोई ना कोई डिवोटी मेरे घर पे आना ही आना है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा? नॉन डिवोटी आएगा, या तुम नॉट, वीकेंड आएगा, वीकेंड पे कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना बंदा। तो कहते उनको डिवोटीज को अपने घर पे जरूर बुलाओ, राइट। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट, सो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट।
एंड पहले मुझे लगता था अरे यार इतने सीनियर डिवोटीज मेरे घर पे आएंगे, उनका टाइम क्यों मैं वेस्ट करूंगा, इससे अच्छा वो और कहीं यूटिलाइज करेंगे ना, मेरे मेरे साथ वो वन टू वन टाइम क्यों बिताएंगे। when a personality like senior devotees they can address 100 people 50 people in a भक्ति वृक्षा और somewhere, ठीक है, तो मैं उनको भक्ति वृक्षा में बुला के 50 लोगों को एड्रेस करवाता हूँ, मैं उनको खाली अपने घर बुला के उनका टाइम वेस्ट करूंगा। बट देन ये मेरा जो मिसकंसेप्शन था, ये जो, तो ये मेरा, उन्होंने जैसे प्रभु ने कहा कि नो, इट डजेंट वर्क लाइक दैट, दे विल कम। एंड टू माई सरप्राइज आई आस्क्ड एंड दे सेड या विल कम, विल कम, एंड डिवोटी स्टार्टेड कमिंग। सो अभी इतना मेरा फोर्टनाइटली तो नहीं है, ना वीकली है, मतलब महीने 2 महीने में शायद एक बार, अभी उतना मेच्योर नहीं हुआ हूँ, बट एंड डिवोटी सीनियर वैष्णवास आर वेरी वेरी compassionate, they never say no to you unless they are some actually some कुछ उनको commitments हैं, appointments हैं, that is fine, you should understand that, but they will come to you and that will expand your spiritual world। ठीक है, तो जो हमारी जो मेटीरियलिस्टिक कंसेप्शन थोड़ी थोड़ी ब्रेक होती जाएगी, मेटीरियलिज्म से वो कटती जाए, क्यों, अगर किसी कर्मी को बुलाओगे या किसी कर्मी फ्रेंड्स को बुलाओगे ना, वो कौन सी बातें करेगा, दीवारों को कैसे सजाएं, ये वाला वॉलपेपर लगाएं, वो वाला लगाएं, वो सारी ऐसी बातें करेगा। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले ली, वहां पर ये लैंड निकला है, लैंड एंड कौन सा पैकेज होता है, लैंड एंड हाउस पैकेज निकला है, तो वो आपको उसमें ऑलरेडी हम बहुत एंटेंगल्ड हैं, वो और एंटेंगल करेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मटेरियली ग्रो ना करो, इवन स्पिरिचुअल जो लोग आते हैं उनसे भी आप मटेरियल गाइडेंस ले सकते हो। स्पिरिचुअल बंदे से मटेरियल गाइडेंस लोगे, वो ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू मटेरियल गाइडेंस टेकन फ्रॉम अ मटेरियलिस्टिक पर्सन। बिकॉज वो स्पिरिचुअल गाइड, जो स्पिरिचुअल गुरु होगा, साधु होगा, वो आपको मटेरियल गाइडेंस भी उस हिसाब से देगा कि हाउ टू एंगेज इट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, या वो किस मूड से करना है उसको, राइट, उसका फायदा क्या होने वाला है। सो जब नारद मुनि उनको मिले, तब क्या किया ध्रुव महाराज ने, ध्रुव महाराज ने अपनी बॉडीली नेसेसिटीज को कम करना शुरू कर दिया। द मोमेंट वी डिक्रीज अवर बॉडीली नेसेसिटीज, क्या होता है, हमारी एंटेंगलमेंट कम हो जाती है, वी बिकम लेस एंटेंगल्ड। जितनी ज्यादा उसमें मटेरियल उसमें बढ़ते रहेंगे, उतना ज्यादा वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा वो, राइट। प्रभुपाद देते हैं ना एग्जांपल कि अगर हम जोत जोत जो जगाते हैं उसमें हम घी डालते रहेंगे, इसमें अगर हम फ्यूल डालते रहेंगे तो जोत जलती रहेगी। सो वी हैव टू स्टॉप इट इफ यू वांट टू कट इट डाउन, राइट। तो अपना जो, जितना हम लेविश हमारा लाइफस्टाइल होगा ना, उतने हम स्पिरिचुअली वीक होंगे, उतनी हमारी इंद्रियां जो हैं वो और स्ट्रांग होती जाएंगी उन चीजों को लेने के लिए, राइट। तो जैसे वो सिंघम, सिंघम मूवी में नहीं था, वो अजय देवगन बोलता है मेरी जरूरतें कम हैं इसलिए मुझ में दम है, ठीक है। तो वो एक ईमानदार ऑफिसर होता है उसमें, राइट। और यहाँ उसमें भी बोलते हैं ना, और मूवीज में बॉलीवुड में जो डॉन डॉन टाइप लोग होते हैं, अरे तुम ये मत करो, अपनी फैमिलीज नहीं होनी चाहिए हमारे जैसे लोगों के लिए। isn't it? So that's not a correct understanding, I'm just giving an example। राइट। तो हमारे जो वेदों में एग्जाम्पल है वो ये है, एक हनी बी के एग्जाम्पल है, एक हनी बी हैज अ कैपेसिटी टू ड्रिल अ होल इनटू अ ट्री, राइट। वेयर एज वही हनी बी जब एक फ्लावर के अंदर चली जाती है और उसका नेक्टर सक कर रही होती है, तो उस टाइम वो फ्लावर पेटल कितना वो होता है, थिन होता है, उसको भी वो पियर्स नहीं कर सकती। वाई, और उसके बीच में कई बार फंस के मर जाती है, क्यों, क्योंकि वो नेक्टर को लेने में लगी हुई है। सो दैट मेड हर वीक। सो सेम वे द अटैचमेंट टू, जैसे अटैचमेंट टू नेक्टर stops her from drilling a hole into the petal, same way attachment to all these materialistic things will make us weak spiritually। तो जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारा जो माइंड है वो अननेसेसरली इन चीजों में लगा रहता है, एब्जॉर्ब्ड रहता है सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज में। अब जैसे अभी मिथुन प्रभु भी बात कर रहे थे, मेरे को अपना ध्यान आया कि मैं इतना टाइम वेस्ट करता हूँ गार्डनिंग में, वहां से खाद लेके आ रहा हूँ, बनिंग से पौधे ला रहा हूँ, लगा रहा हूँ, यार मतलब बिल्कुल ही वेस्ट,
मतलब इस गार्डनिंग नहीं करूंगा तो कुछ हो नहीं जाएगा मेरी लाइफ में, राइट। तो ये घर की दो मिर्चें हैं और जो जो दो चार फल निकलते हैं उसमें मैं खुश होता हूँ करके, तो ये क्या है, ये सेल्फ क्रिएटेड है, ये सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज हैं हमारी। और ऐसी मैं अपनी लाइफ में 1000 और ड्यूटीज में गिना सकता हूँ जिनको मैं कट डाउन कर सकता हूँ। बट क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट है और कुकून की तरह उसमें हम फंसे हुए हैं, एंटेंगल्ड हैं, राइट। तो वही वो कुंती महारानी कह रही है कि ये जो एंटेंगलमेंट है इसको हमें तोड़ना है, राइट। तो कृष्णा विल हेल्प अस। एंड फॉर, और नॉट ओनली दैट, हमने अपनी और सेल्फ क्रिएटेड क्या है कि सबसे पहले तो सबसे पहली जो हमने गलती करी है वो गृहस्थ आश्रम में आके गलती करी है। उसी से ही हमने और उसको एक्सपेंड कर दिया अपने मटेरियल सर्कल को, isn't it? जो ब्रह्मचारी हैं एटलीस्ट उनका इतनी वो नहीं है ड्यूटीज, वाइफ टुवर्ड्स हस्बैंड टुवर्ड्स चिल्ड्रन, नो 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 सच थिंग, राइट। ओनली वन एम, अटैचमेंट टू कृष्णा, राइट। फिर घर आता है, बिल्स आते हैं, घर की मेंटेनेंस आती है, जैसे मिथुन प्रभु ने लगाया है वीकेंड घर की मेंटेनेंस में। राइट। तो बड़ा घर हो फिर उसकी और ज्यादा ड्यूटीज। महीने से बंद है। हाँ। एक महीने से। 1 महीने से, माय गॉड। राइट। तो मेरा मेरा भी कॉर्नर हाउस है, मेरा और हेडेक है, उसकी पूरी लंबी नेचर स्ट्रिप है, उसको मैं मो कर रहा हूँ, आया हूँ मैं मो कर रहा हूँ, फिर मो करते करते उसका पेट्रोल खत्म हो गया, फिर गाड़ी उठाई, पेट्रोल लेके आया, फिर उसको मो किया। लोग कितना फालतू का काम, तो कहाँ से हम स्पिरिचुअली, जब इतना ज्यादा हमने रायता फैलाया हुआ है मटेरियल लाइफ में, तो स्पिरिचुअल लाइफ तो भूल जाओ, उसमें क्या प्रोग्रेस कर लेंगे हम, राइट। सो ध्रुव महाराज क्या करते थे? ध्रुव महाराज आ, बहुत कम उन्होंने अपनी बॉडीली नेसेसिटीज कम कर दी। तो पहले पहले मंथ में उन्होंने क्या खाया? फ्रूट्स। और फ्रूट्स भी कौन से खाए? टेस्टलेस। जनरली जो सेजेस जाते हैं फॉरेस्ट में तपस्या करने, तो वो क्या करते हैं, वो मंकीज को देखते हैं, जो मंकीज खा रहे होते हैं फल, वो एडिबल होता है, टेस्टी होता है, तो वो वाले वो फल खाते हैं। बट ध्रुव महाराज ने क्या किया? टेस्टलेस, टेस्टलेस फ्रूट्स खाए। क्यों खाए टेस्टलेस? ताकि वो अटैचमेंट, फ्रूट्स के साथ भी अटैचमेंट ना रहे। क्या होता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि टेस्टी फूड खाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? अगर टेस्ट टेस्ट वाले फ्रूट्स भी तो खा सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है टेस्टी फ्रूट्स खाने में? उसमें भी वी आर सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस अल्टीमेटली। हम्म। तो सेंस को सेटिस्फाई करेंगे तो उससे क्या होगा? और प्रभु जी इसको ऐसे फिर भी, एंटैंगल्ड हो जाएंगे हम वापस इन्हीं चीजों में। एग्जैक्टली। और प्रभु जी इसमें तो ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि अगर भगवान को ऑफर किया हुआ है तो भी, हाँ। लेकिन वो फिर भी हमारी टंग सेटिस्फाइड तो होगी, लेकिन वो प्योरीफाई भी करेगी हमें साथ में। प्यूरिफाई, हाँ प्रभु वो प्रसाद को प्यूरिफाई करेगा, बट वो बोलते हैं ना हमेशा कि उसके हमें मटेरियली भी वो, अगर हमें, अगर कोई डायबिटिक है तो कई बार होता है ना कि वो प्रभु डायबिटिक है फिर भी कोई आके देता है, प्रभु ये खा लो ना मीठा मैं बनाए। अरे इनका प्रभु बोलो कि प्रभु ये आप क्यों खा रहे हो, आप डायबिटिक हो, मीठा क्यों खा रहे हो? तो वो बोलते हैं, कहते हैं अरे प्यार से दे रहा है कोई तो ना नहीं हो रही। तो ये वो बात है कि कृष्णा का प्रसाद है, तो कई कई लेक्चर्स में बोलते हैं कि कृष्णा का प्रसाद है, दैट इज फाइन, बट वो अपना मटेरियल नेचर में वो मैटर अपना काम तो करेगा ही, राइट। वो मटेरियल, वो प्रसादम है तो वो स्पिरिचुअली प्यूरिफाइंग कर रहा है, बट मैटर, एज अ मैटर वो बॉडी को तो नुकसान देगा ही ना अगर हम खाते रहेंगे तो। अभी जैसे मैंने डिनर कर लिया, 5, 5:30 बजे डिनर किया, और आई थिंक साक्षी ने नहीं किया था, तो उसने मैंगो शेक बनाया, अब मैं डिनर कर चुका हूँ फिर भी मैं मैंगो शेक का ग्लास पी गया हूँ। तब डिनर करने के बाद वो, उसमें कोई भूख नहीं थी, वो क्या थी, वो मेंटल हंगर, वो सिर्फ हमारी मेंटल हंगर होती है जो हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, राइट। और उससे जैसे रुचिता माता जी ने कहा कि टेस्टी खाने से क्या होता है कि टंग जो है वो टिटिलेट होती है, तो उसका और दिल करता है खाने का, और दिल करता है उससे, एक तो मोटापा आता है वो अलग, दूसरा वो जो सेंसेस है ना वो और स्ट्रांग बनती रहती है, और जब वो स्ट्रांग बनती है तो और पैशन आता है हमें, और जब पैशन आता है तो फिर और दिल करता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, और करें और करेंगे, दिल मांगे मोर, तो दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट एंटेंगल्स अस। तो ये जो दो सेंसेस हैं हमारी, हमारी टंग और हमारे जेनिटल्स, दीज आर द मोस्ट डेंजरस, एंड दीज आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग अस इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर हमने इन दोनों पे कंट्रोल कर लिया, देयर इज नो वन स्टॉपिंग अस फ्रॉम गोइंग अप,
आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। तो दीज आर द पाशम। सो उसमें थर्ड कैंटो में बताते हैं वो आ, आ, देवहूति कपिल मुनि को बोल रही होती है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतु मोक्ष द्वारम अपावृतम। राइट। तो बोलते हैं प्रसंगम अजरम, ये जो प्रसंग है आपस में हम जो मिलते हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, ये जो मटेरियल नेचर के साथ हम मिक्सअप हो रहे हैं, ये क्या है? पाश, पाश है। अजरम मीन्स नेवर, ओल्ड नहीं होता ये पाश, ये हमेशा हमें बांधे रखता है। बट इससे निकलने का तरीका क्या है? मोक्ष द्वारम उपावृतम स एव साधुषु कृतु। उस एंगेजमेंट को, उस अटैचमेंट को वी हैव टू जस्ट शिफ्ट इट टुवर्ड्स कृष्णा, टुवर्ड्स साधुज, राइट। तो ध्रुव महाराज ने पहले महीने क्या खाया? टेस्टलेस फ्रूट्स। नेक्स्ट मंथ उन्होंने वो भी खाने छोड़ दिए। उन्होंने बोला नो, मैं ये भी नहीं खाऊंगा, अब मैं खाऊंगा वो व्हीट ग्रास, वो खाली शाक ग्रास खाई उन्होंने। फिर थर्ड मंथ में वो भी छोड़ दिया, जस्ट पानी। फोर्थ मंथ में पानी भी छोड़ दिया, सिर्फ हवा खा रहे थे वो, और एक टांग पर खड़े होकर वो वो कर रहे हैं। नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था, मंत्र से दीक्षित किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेम वे, एक्चुअली देखा जाए हमें भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। हमें भी बोला कि ऑफर करो कृष्णा को, और वो प्रसादम ग्रहण करो थोड़ा सा, और साथ में मंत्र का जाप करो। सो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। So the principle is behind all this thing is that the bodily, most of our bodily needs are imaginary. हमें इतना नहीं चाहिए, राइट, इतना नहीं चाहिए हमें। और इसको प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? एवरी एकादशी, एटलीस्ट एवरी एकादशी, बिकॉज वो उस टाइम पे मर्सी भी फ्लो कर रही होती है। तो उस टाइम पे हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, कीप ऑन चैंटिंग चैंटिंग, इंक्रीज आवर चैंटिंग राउंड्स, एंड ईट लेस और ईट जस्ट फ्रूट्स, यू कांट, है ना। तो इतनी बॉडीली नीड्स हमारी होती नहीं है। अभी लास्ट ईयर चतुर्मास में, नॉट लास्ट ईयर एक्चुअली, अभी 2024 चल रहा है, 2022 में, लास्ट ईयर तो मैं इंडिया ही था चतुर्मास में। तो उससे पहले मैं यहाँ पर था, और टचवुड, बाय कृष्णाज ग्रेस, आई वॉज एबल टू डू वेरी नाइस, मतलब मेरे राउंड्स भी अच्छे हो रहे थे। इस बार वाले तो बेकार गया मेरा, बट उससे लास्ट ईयर अच्छी चैंटिंग हुई, और खाना पीना भी एक बार भी कर दिया था, और काफ़ी अच्छा हुआ, और एज अ रिजल्ट मेरे 10 kg वेट रिड्यूस्ड, राइट। और मेरे डॉक्टर ने भी रिपोर्ट्स देखी, ब्लड रिपोर्ट्स, आई थिंक मैंने बताया भी था, वो भी देख रहा है, कहता है अरे वाह, बैक ईयर ऑन ईयर। वो उसमें अगर आप रिपोर्ट देखो, मैं हर बार दिसंबर में करवाता हूँ ब्लड टेस्ट। तो उसने देखा 22 का, 23 का, 21 का, 22 का। तो उसने देखा कि रिपोर्ट्स आर गेटिंग बेटर ऑटोमेटिकली। सो नॉट ओनली स्पिरिचुअली, इफ वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जो बॉडीली नेसेसिटीज, जो बॉडी, ये हम फालतू में हम कर रहे हैं ना, इसको अगर हम रोकेंगे, इसको हम सिवियर करेंगे, तो क्या होगा हमारे लिए? इवन हमारी मटेरियल लाइफ के लिए भी अच्छा है, right? एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे प्रभु, कहते एक डिवोटी ने वो ऑन साइट से आया इंडिया में। तो उसने क्या किया कि मंदिर के पास ले लिया बड़ा घर, वो मंगला आता था, तो उसने मंदिर के पास बड़ा घर ले लिया, कि अब मंगला पास, घर के पास ही होगा, और बड़ा घर भी है, बंगला भी है। पहले वो 2 बेडरूम हाउस में रहता था, तो उसने कहा बड़ा घर ले लिया तो अच्छा है, और ऊपर से टेम्पल के पास भी आ गया। अब फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं, कहते प्रभु जी मैं तो दोबारा जा रहा हूँ ऑन साइट। बोलते हैं क्यों? कहते हैं बड़ा घर लिया तो उसकी ईएमआई भी तो उतारनी। तो प्रभु कहते कि तुमने मंदिर आने के लिए खड़ा घर लिया था पास में, कि मंदिर से दूर जाने के लिए लिया था? तो वो 8 साल, कहते वो फिर 8 साल के लिए ऑन साइट दोबारा चला गया। सो बाद में उसने भी बोला कि यार इट वॉज अ मेंटल हंगर। हम वो उसने रियलाइज किया कि उसको बड़ा घर नहीं चाहिए होता, हमें छोटे घर में हमारा गुजारा हो सकता है, बट ये कीड़ा हमारे अंदर घुसा हुआ है कि नहीं, हमें बड़ा घर चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। पहले मेरा तो क्या था कि मम्मी के लिए चाहिए, राइट। तो अभी मुझे किसी डिवोटी ने बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा टेम्पल के पास आ जा, अब तो मम्मी भी नहीं है, पहले तो तूने बोला था कि मम्मी मम्मी को पसंद है बाहर बैकयार्ड और वो सब, तो अब तो आ सकता है। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप, पर वो हिम्मत नहीं होती, राइट। इट्स नॉट दैट इजी बोलने, यहाँ पे मैं बैठ के बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी वो करता हूँ, राइट। बट अगेन,
वी नीड टू एटलीस्ट सुन के, पढ़ के थोड़ा इम्पैक्ट रहता है एटलीस्ट, इसको और एक्सपेंड ना करें, इजंट इट? कई लोगों का इसमें भी मन नहीं भरता, राइट? और बड़ा हमें क्या क्या चाहिए, डबल स्टोरी डुप्लेक्स चाहिए जी, ये तो सिंगल स्टोरी है, हमें और बड़ा चाहिए, और बड़ा। ये तो इसकी तो कवर्ड एरिया 26 स्क्वायर मीटर्स का है, हमें 30 स्क्वायर मीटर्स का चाहिए, राइट? और फिर क्या है, बड़ा घर तो ले लिया, फिर उसमें क्या है, उसमें सामान भी तो भरना है, अब खाली थोड़ा रखोगे उसको, फिर उसको सामान भरने में टाइम वेस्ट करो अपना। यहाँ जाओ, बनिंग्स जाओ, वहां से पहले तो बाहर वाले प्लांट्स, फिर अब इंडोर प्लांट्स का कीड़ा, फिर इंडोर प्लांट्स मैं लेके आया हूँ, वो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज वी बिकेम स्लेव्स ऑफ आवर ओन डिजायर्स, हम उसमें कुकून में सिल्क वर्म की तरह फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, राइट? और उसके लिए कोई हमारे पास एक ही सोल्यूशन है जो ध्रुव महाराज ने फॉलो किया, टू कट डाउन, राइट, एंड एसोसिएट विद डिवोटीज, नारद मुनि जैसे डिवोटीज से मिलो, अपनी बॉडीली नीड्स कम करो, और देन उसके बाद क्या होगा, आपका स्पिरिचुअल एक्सपेंशन होगा, राइट? जैसे वो मंकी की एग्जांपल होती है ना, जब मंकी को पकड़ना होता है तो वो क्या करते हैं, एक नैरो से उसमें घड़े में चने डाल के रख देते हैं, तो मंकी आता है, आगे चने उठाता है, और वो मुट्ठी बंद होती है तो वो उसमें से निकलती नहीं है, राइट? और उन्होंने घड़े के साथ वो बांधा होता है रस्सी, तो उससे रस्सी से उसको खींच के उसको मंकी को पकड़ लेते हैं। मंकी में इतना नहीं होता कि मैं वो चने छोड़ दूं, अगर वो छोड़ दे उसी टाइम उसका हाथ निकल जाएगा और वो भाग जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे ही हम हैं, हम भी मंकी की तरह, हमने वो मटेरियल चीजें पकड़ के रखी हुई हैं, तो कहाँ से हम निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे। वेयर एज यहाँ पे उन्होंने बोला है, अ प्योर डिवोटी कट्स ऑफ हिज limited ties of affection for his family and widens his activities of devotional service for all the forgotten souls। वो कैसे अपनी वाइड करता है, कैसे स्पिरिचुअलिटी में बढ़ता है आगे, किसकी एग्जांपल दी उन्होंने, सनातन गोस्वामी की। इतने अमीर थे, उनकी बोट भरी हुई थी, है ना, उससे, गोल्ड से, वो छोड़ दिया। मिनिस्टर्स थे वो, किंग में, किंग के उसमें ऑफिस में, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के दे स्टार्टेड डूइंग इट, अपने कंफर्टेबल होम्स, राइट, हायर कास्ट एवरीथिंग छोड़ के वो क्या बन गए, मेंडिकेंट्स बन गए, राइट? फिर उन्होंने किसकी एग्जांपल दी, रामचंद्र की, राइट, कि उन्होंने अपनी बिलेवेड वाइफ को के साथ कट ऑफ कर दी, हालांकि एक्चुअली एटर्नली दे आर एटर्नल कंसॉर्ट्स, नो वन कैन सेपरेट लक्ष्मी नारायण, राइट? बट एज अ पार्ट ऑफ दैट लीला ही शोड कि एक किंग को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक आइडियल किंग की क्वालिटीज उन्होंने दिखाई हैं, कि इफ इट डिमांड्स, यू गिव अप एवरीथिंग। चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास, राइट, फॉर अ हायर कॉज, फॉर अ रीजन, रीजन क्या है, डिवोशनल सर्विस फॉर ऑल द फॉरगॉटन सोल्स। उन्होंने अपने मजे के लिए नहीं कर रहा है कुछ। अगर श्रीला प्रभुपाद ना अपनी वो घर छोड़ते और ना संन्यास लेते और ना ये करते, तो हम कहाँ होते आज की डेट में, बिल्कुल भी नहीं। कोई कोई क्वेश्चन डज नॉट अराइज कि मैं भक्ति में आया था, अगर इस ना होता, राइट? नॉट ओनली दैट, हमारे ये तो आचार्य, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सबकी एग्जांपल हैं, हमारी अपनी कॉन्ग्रीगेशन में इफ यू लुक, कितने डिवोटीज हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी है। अभी हमने जीत बाबा जी को बुलाया था, तो उन्होंने बताया, कहते, मैंने उनसे ऐसी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, कहते, अनिरुद्ध प्रभु 30-40 साल से वो कर रहे हैं भक्ति, राइट, और उन्होंने बच्चे नहीं किए, अपनी फैमिली टाइज उन्होंने नहीं एक्सपैंड किया उनको, तो ये हमारे हाथ में है, राइट? अनिरुद्ध प्रभु, केशव प्रभु जिनका वो फार्म हाउस है, भक्ता प्रभु जो यहाँ पे हैं विंडम सेंटर में, उन्होंने नहीं किया बच्चा। प्राणा प्रभु अभी जिनकी डेथ हुई है, isn't it? प्राणा प्रभु के भी कोई बच्चा नहीं था। जितने भी ब्रह्मचारीज हैं, तो दैट इज, वो एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारी अपनी कॉन्ग्रीगेशन में, राइट, जिन्होंने अपने अपनी जो प्योर डिवोटीज कट्स ऑफ द लिमिटेड टाइज ऑफ अफेक्शन, तो उन्होंने अपनी वो मटेरियल लाइफ को एक्सपैंड नहीं किया है, रादर उन्होंने किसको वाइडन किया है, अपनी डिवोशनल सर्विस को वाइडन किया है, इंस्टेड ऑफ दैट, isn't it? तो अब हम एटलीस्ट अब हम सब तो गृहस्थ हैं, हम तो नहीं वो कर सकते, और हम सबके बच्चे भी हैं, तो वी कांट फॉलो दैट पाथ, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन और उसका रायता ना फैलाएं,
एटलीस्ट यहीं पर आकर थम जाए, राइट। मेरे और घर वाले और फ्रेंड्स जो है, नॉन डिवोटी फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, तो मैं कहता हूँ चलो यार 900 पे तो रुक गए ना, ठीक है, कम से कम 900 पे ही रुक जाओ। तुम तो 900 पे भी नहीं रुक रहे हो। isn't it? So तो हाँ, टू कट ऑफ ऑल द लिमिटेड, इसमें और भी थी ना, हाँ। हाँ, टू कट ऑफ ऑल द फैमिली अफेक्शन मीन्स टू ब्रॉडन द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज, राइट। सो ये हमने एग्जांपल्स देखी हैं इन सब लोगों की कि जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाया है बाय कटिंग ऑफ देयर टाइज, मटेरियल टाइज, राइट। सो अब कृष्णा, अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है। अब यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं, अच्छा, सो यू वांट टू कट ऑफ योर टाइज विद पांडवास एंड वृष्णीज, बट उनको, मैं तो उनको पसंद करता हूँ, दे आर वेरी डियर टू मी, और तुम उनसे टाइज कट कर रही हो, तो विच मीन्स मेरे से भी तुम्हारा कनेक्शन कट कट हो जाएगा, इजंट इट। मेरे को पांडवास आर वेरी डियर टू मी, और तुम बोल रही हो उनसे रिश्ता तोड़ने को। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? कैसे आंसर दोगे? अरे 10 मिनट रह गए। ओके, आई आंसर इट। तो कुंती महारानी क्या बोल रही हैं? तो वो बोलती हैं, अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि जो बॉडीली लेवल पे के वो मेरे बेटे हैं, वो वाली अटैचमेंट कट कर दो, बट नाउ आई विल सी देम एज डिवोटीज। सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अस, कि हमें अपनी फैमिलीज के साथ टाई कट करने का मतलब ये नहीं है कि चलो जी आज तो मैं, चलो छोड़ो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। हमें क्या करना है? हमें उनको एज माई सन, माई हस्बैंड, माई वाइफ, इसके बजाय हमें उनको क्या देखना है? एज डिवोटीज ऑफ कृष्णा। और जब हम उनको कृष्णा के डिवोटीज देखना शुरू कर देंगे ना, बिलीव मी, वी विल सर्व देम मोर नाइसली, और अच्छे से हम उनको सर्व करेंगे, राइट। तो रिलेशनशिप जो होगा ना हमारा, जब वो मटेरियली से हटकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा ना, विल स्टार्ट गिविंग मोर, गिविंग, सो देन इट विल बी अबाउट, एक्चुअली रिलेशनशिप्स आर अबाउट गिविंग, नॉट अबाउट टेकिंग। जब हम किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आई एम एंटरिंग इनटू दिस रिलेशनशिप, नाउ टू मेंटेन इट आई हैव टू गिव एंड नेवर टेक। वो आता है बाय डिफॉल्ट, आता है जैसे भी आता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट मेरी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि इफ आई एम एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन, आई शुड बी रेडी टू गिव, कम व्हाट में, right? And that becomes easy when you think, when you consider that person as a devotee of Krishna. So this is what Krishna is saying, कि पांडवास तो मेरे डियर हैं, तो अगर तुम उनसे ही नाता तोड़ दोगी तो कैसे चलेगा? तो कुंती महारानी बोल रही है कि ओके, आई विल डील देम एज योर डिवोटीज, दैट विल कम इन द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वर्स, राइट। तो अब तुम गिविंग की पोजीशन पे जब तुम कृष्णा को कुछ देने लगो ना, दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। अभी रिसेंटली मैंने ये भागवतम क्लास सैटरडे मॉर्निंग यहाँ पे विंडम में गया था, तो वहाँ मैंने सुना था ये, बट आई विल डिस्कस सम टाइम अगेन। आई क्विकली फिनिश दिस, 8 मिनट रहे। सो व्हेन वी डू दैट, व्हाट हैपेंस? जब हम अपनी मटेरियल लाइफ से हटकर क्या करते हैं, तो हम एक्सपेंड करते हैं, तो वसुदेव कुटुंबकम। वही जीत बाबा जी से भी सेम बात हुई, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में? तो उन्होंने बोला हाँ हैं, मेरे फादर भी हैं यहाँ पर, एंड कहते बट आई एम नॉट इन टच विद देम बिकॉज दे गेव मी एन ऑप्शन दैट ओके, नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन कृष्णा एंड अस, सो आई चूज कृष्णा। ही सेड ओके, यू गो एंड स्टे विद योर कृष्णा फैमिली, डोंट टॉक टू अस। And he said, now I have a big family, right? So that this is how Krishna gives you. So एक ऐसा मत सोचो कि ब्रह्मचारी हैं तो इनके पास कौन है, नहीं, उनके पास बड़ी फैमिली है। एंड एक्चुअली ही टोल्ड मी कि भक्ता प्रभु, अब देखो, अब ये अनिरुद्ध प्रभु, भक्ता प्रभु, प्राण प्रभु, ये जो अब डे एंड एज में आ गए हैं, अपनी प्राण प्रभु इस राइट। सो ये जो बूढ़े हो गए हैं, हु इज टेकिंग केयर ऑफ देम? कभी सोचा है? हमें अपने आप को बुढ़ापे में सोचकर देखो क्या होगा हमारा। हमें लगता है हमारे बच्चे हैं, हमारा तो घर है, हमारी इंश्योरेंस है, ये है वो है, इनका कोई भी नहीं है। ये इन सब जो हमारे पास है वो इनका कुछ भी नहीं है, बट दे हैव मच मोर।
अब जिस आश्रम में वो रह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा अगेन, तो वो बोलते हैं कि मैं तो मंदिर उसका किराया देता है, वहां पर रहता हूँ मैं। मैंने कहा खाना, कहते खाना कभी कोई डिवोटी दे देता है, कभी मंदिर में खा लेता हूँ। टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, राइट? व्हेन कृष्णा इज इन सेंटर, एवरीथिंग जस्ट गोज वेरी स्मूथली। तो प्रभुपाद बोलते हैं एक फैमिली में भी फादर जो होना चाहिए वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए, मदर या वाइफ शुड बी चेस्ट, एंड चिल्ड्रन शुड बी ग्रेटफुल, राइट? देन दिस इज दीज आर द साइंस ऑफ ए स्पिरिचुअल फैमिली, कि तुम उस फैमिली में रिलेशनशिप्स आर स्पिरिचुअल, नॉट बेस्ड ऑन अहम मामेति, आई एंड माइन, नॉट के ये मेरी प्रॉपर्टी है, राइट? ये बच्चा जो है ये मेरा है, नो, दिस बच्चा इज गिवन टू मी बाय कृष्णा। सो अगर आपको किसी कृष्णा ने बच्चा दिया है ये समझ के उसका करोगे, आप और अच्छे से उसकी देखभाल करोगे, राइट? Last thing we'll do. Therefore, it is sometimes experienced that Lord, out of his special affinity towards a weak devotee, breaks the family affection by the force of circumstances arranged by his powerful energy. By doing so, he causes the devotee to become completely dependent on him and thus clears the path for his going back to Godhead. नाउ कुंती महारानी इज वीक, राइट? शी इज शोइंग, उसने जैसे अपनी पिछली प्रेयर्स में उन्होंने कहा कि आई एम वीक एंड ऑल। अब दैट्स व्हाई शी इज प्रेइंग कि मेरे से तो नहीं कट हो रही, आई एम नॉट दैट स्ट्रांग कि मैं कट कर दूं ध्रुव महाराज की तरह या उनकी तरह। सो दैट इज व्हाई शी इज प्रेइंग। और देन कृष्णा व्हाट ही डज, ही ऑर्केस्ट्रेट समथिंग, राइट, इन देयर लाइफ। फिर वो क्या करते हैं? Special affinity towards a weak devotee, he breaks that family affection by some circumstances. जैसे शिला प्रभुपाद के साथ हुआ, उन्होंने बोला टी और मी। जब उन्होंने उनके भागवतम के वो ट्रांसक्रिप्ट्स रद्दी वाले को बेच दिए एक टी के लिए, she chose tea. That word tea from her mouth, that made Prabhupada's life easy, isn't it? That made his life easy, or as a result we are here. सेम हमने नारद मुनि का इसी कैंटो में पढ़ा है कि नारद मुनि जब सेजेस आए उनके घर, उन्होंने सेजेस की सेवा करी, सेजेस ने उनको दीक्षा दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद नारद मुनि ने क्या किया? ये क्वेश्चन पूछा था ना उन्होंने, तो नारद मुनि ने कहा उसके बाद मैं वापस वही काम करने लग गया, अपनी माँ की सेवा करने लग गया, ये करने लग गया, वो करने लग गया। फिर फिर क्या हुआ? माँ की डेथ हो गई, सांप ने आके माँ को ले लिया। जिस एक चीज ने उनको रोक रखा था स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से, कृष्णा टुक हर, and then he did not look back. He moved in the north direction and started doing तपस्या, right? Same way हमारे मेरी गॉड सिस्टर है मत्स्या माता जी, टेम्पल में, वो भी यहाँ टेम्पल के पास ही रेंट पे रह रही थी। तो उनका यंग सन उनका यंग सन चला गया, तो but she carried on like doing devotional service here, and now she moved to Sydney, वहां पर न्यू गोवर्धन, वहां पर जाके वो सेवा कर रही है, वहां पे जाके शी इज टीचिंग, राइट? सो कृष्णा कुछ ना कुछ अरेंज कर देते हैं कि जिससे अगर इफ यू प्रे, राइट, इफ यू प्रे एंड टुवर्ड्स अ वीक डिवोटी, ही डज दैट सो दैट यू प्रोग्रेस फास्ट इन भक्ति, राइट? विल स्टॉप हियर, आई विल क्विकली समराइज। तो हमारी क्या होती हैं अटैचमेंट्स, एनीवे कट ऑफ होती रहती हैं। जैसे हमने देखा था लीव्स की एग्जांपल से, हम एक सेट ऑफ लोगों से मिलते हैं, फिर उनको छोड़ते हैं, फिर दूसरों से मिलते हैं। दिस कीप्स ऑन हैपनिंग विद इन द सेम लाइफ एंड आफ्टर दिस लाइफ एज वेल। अगर हमें लगता है कि ये हमारा सात फेरों के सातों जन्म है, ये नहीं है, राइट? नेक्स्ट बर्थ में अगेन सम अदर बॉडी, सम अदर अटैचमेंट, राइट? सो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। देन we discuss how we can cut those. How we can cut those? By inviting sadhus our home, taking spiritual लोगों के साथ ज्यादा रहने का है, मेटीरियल और तामसिक लोगों के साथ कम रहने का है, isn't it? एंड अपनी बॉडीली नीड्स को रिड्यूस करेंगे, तब हमारी सेंसेस जो होंगी वो स्ट्रांग हो जाएंगी, राइट, एंड स्पिरिचुअल हो जाएंगी, रादर देन वो सेंसेस ये सब इधर उधर मुंह मारेंगे अगर हम तो। थर्ड, हमें देन वी सॉ, हमने जो एग्जांपल्स देखी कि जिन्होंने वो मटेरियल अटैचमेंट्स कट करी हैं, कृष्ण भगवान ने खुद कट करी है ना, जब वो वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए। राम भगवान की एग्जांपल देखी, फिर हमने ये अपने षड गोस्वामीज की एग्जांपल देखी,
फिर हमने शिला प्रभुपाद की एग्जांपल देखी, नारद मुनि की एग्जांपल देखी, राइट। और फिर हमने क्या देखा कि कृष्णा वी शुड सी आवर रिलेटिव्स एज डिवोटीज ऑफ कृष्णा। हम अपने जो भाई बहन बंधु, ये माता पिता, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, वी शुड सी देम एज डिवोटीज ऑफ कृष्णा, नॉट एज अवर ओन एंड ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म। देन वी विल बी एबल टू सर्व देम बेटर, राइट। और हमारी अटैचमेंट भी कम होगी, बिकॉज विल सी देम एज डिवोटीज ऑफ कृष्णा। मोक्ष द्वारम अपावृतम, राइट। व्हेन वी सी देम एज डिवोटी, तब मोक्ष के द्वार खुलेंगे, नहीं तो वो अजरम पाशम, वो पाश बन के हमें पकड़े रखेंगे। देन alright, so but if we can't do that, then we also discussed, right, कि अगर हम इस लेवल का नहीं कर सकते, जितना रहता फैला हुआ है एटलीस्ट और ना फैलाएं, जहां पर है उतने में ही वी शुड ट्राई टू कंटेन आवर सेल्स। हमें यहाँ पर थम जाना चाहिए, और ज्यादा नहीं हमें इसको अपने मटेरियल एंडेवर्स करने चाहिए। अगर हम छोटे घर में नहीं मूव कर सकते, अगर हम और उसमें नहीं बढ़ सकते, बट एटलीस्ट वी शुड नॉट एक्सपैंड अवर मटेरियल थिंग, रादर वी शुड ट्राई टू एक्सपैंड अवर स्पिरिचुअल थिंग। ऑलराइट, विल स्टॉप हियर। सॉरी यार, आज ज्यादा हो गया, पूरे 8 ही बजे हैं वैसे, मैं अगर जल्दी खत्म कर देता हूँ। एनी कमेंट्स, करेक्शंस? अब तो नहीं होंगे कोई, अब कोई कुछ नहीं होगा। 8 बज गए हैं। ठीक है, चलो। ग्रंथ, हाँ जी, कुछ बोल रहे हो प्रभु? थैंक यू प्रभु जी। और वंडरफुल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कभी कभी लगता है भागवतम ना सुने तो शायद हमारे लाइफ में पर्सपेक्टिव ही इतना लाइफ को लेकर अच्छा हो ही नहीं सकता। लाइक करेक्ट। दिस इज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट जो भी आपने दिया ना, कि हमें अगर अफेक्शन होता है तो हम कहीं ना कहीं वीक हैं। लाइक हाँ, एज अ हम फिर आगे प्रगति कैसे करेंगे अपने भक्ति में। तो करेक्ट। दिस इज लाइक अब ऐसा लगता है अगर कहीं से अटैचमेंट खत्म हो रही है या ऑटोमेटिकली रिश्ते कम हो रहे हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग इंस्टेड ऑफ क्राइंग अपॉन इट or एग्जैक्टली। brooding upon it. So this was such an eye opener for me. Like it's a big relief, I would say. करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। और Hmm. हमने अपनी डिवोटीज की लाइफ में भी देखा है ये चीज, दिस थिंग हैपनिंग। एंड द द बेस्ट पार्ट इज कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इट, रादर वो और तीव्रता बढ़ती है उस चीजों से, उस चीज से भक्ति में तीव्रता बढ़ती है। उससे वो पीछे नहीं हटते हैं, उससे वो एक स्टेप आगे ही जाते हैं। Hmm. राइट। Right. Thank you so much. थैंक्स फॉर इट, थैंक्स टू यू। Hare Krishna. कृपा सिंधु विद्यापति नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।